So friends, good morning. Good morning. Good morning. Today we will continue English class for grammar subject. And in that, first of all, we will start formation of sentence in English from Hindi. And I will like that you should answer me very specifically and clearly. My questions will be very simple, which you can answer without much problem. Okay? Because it is related to the concepts. Concept means if any student knows only two things, one identification, one how to make sentence, then it becomes complete grammar. Okay? See, if we know identification of a sentence, we can very well frame sentence by following the rules. Okay? So we will start with tense making. See, can you tell me how many types of the tenses are? When we say tenses, there are three tenses, present, past and future. So I will question you, how many types of the tenses are there? Mansa Khan, bataiye. Sit down. 3 types of tenses: Like? present, past, future. Good. So there are three tenses, one present, one past and one future. When we talk of present means which is happening, which is in present condition. Past means which has already passed. And future means which will come tomorrow. Right? Yes, yes. Or we can say that present means today, past means yesterday, future means tomorrow. Right? Yes, sir. And accordingly sentences are there. So we should know how to make sentence. So how to make sentence, then we should know identification. What is identification of a sentence? Here we are talking and we will talk only about the active verbs. How many types of the verbs are there? Tell me, Mr. Shivam. Active and inactive. Inactive. There are two types of the verbs which are active and Inactive. when we talk of active means which are moving. Where there is movement, like Yes, sir. going, coming, eating, dancing, drinking. So these are the verbs where something is happening. Right? Yes. Okay. See, inactive बैठा हुआ है, सोया हुआ है, तो वो ये क्या है? Inactive verbs Inactive है. verbs. So here our lesson is, our subject is only active Active verbs. verb. Okay. So this you should remember. And Mansa just told me three types of these tenses are there: present, future, past. And Shivam told me what? What told? Active and inactive. So when we talk of inactive, so now we will go to identification. See, present tense is divided in how many parts? Present कितना parts होता है present का? शिवम बताइए. present indefinite, present continuous, present perfect continuous. एक बार और बताइए. present indefinite, present continuous, present perfect continuous. Good, very good. So there are four types of the categorization of present. Yes. Now Prince, you tell me, what is identification of present indefinite? Identification mark क्या है? Present indefinite कौन सा sentence होता है? ता था ते थे ते थे. था कहाँ हो गया प्रेजेंट में? ता है ते हैं ते हैं. सो रहे हो क्या? हम जब प्रेजेंट की बात करते हैं, फिर बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है? ता है ते हैं ते हैं. जो सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आते हैं, दैट आर कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट. मनसा बताइए, व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट? ता है, ती है, ते है. फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल जैसे वो हम खाना खाते हैं. हम खाना खाते हैं. इसमें हम क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. खाते हैं वर्ब. वर्ब. खाना है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. राइट. Yes, sir. सो ये हम अब प्रेजेंट इंडेफिनिट्स की पहचान क्या हुई? ता है, ती है, ते है. नाउ यू टेल मी व्हाट इज द रूल टू मेक सेंटेंस. शिवम बताइए रूल क्या होता है? कैसे बताएंगे रूल? सब्जेक्ट प्लस verb plus s auxiliary es. यस. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस.
So as for yes means when subject is plural, then there will be only verb. verb. If subject is singular, then there will be subject plus verb plus s या es, whatever is demanded. Understand? Yes. So now you let me know one sentence of present indefinite in Hindi. हिंदी में कोई एक टेंस बताइए. शिवम खेलता है. इसकी अंग्रेजी बताइए. शिवम खेलता है. शिवम प्ले. शिवम प्ले. फिर बोलिए ऊंची आवाज में. शिवम प्ले. शिवम सिंगुलर है या प्लूरल है? सर सिंगुलर है. तो सिंगुलर में वर्ब कैसा आएगा? यस. क्या हुआ टेंस? क्या हुआ बोलिए प्रिंस. शिवम प्लेज. शिवम प्लेस. शिवम क्यों नहीं बता पाई, क्या कारण है? मनसा स्कूल जाती है. क्या हुई शिवम अंग्रेजी? मंतसा गोज टू स्कूल. गोज टू स्कूल. मनसा बताइए. शिवम गाना गाता है. शिवम सिंग्स सॉन्ग. सिंग से सॉन्ग. ओके. So now it is clear present indefinite क्या है? Yes, sir. Now accordingly now we will go to present continuous. यस सर. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन बताइए. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यस बताइए प्रिंस. रहा है, रही है, रहे हैं. जो सेंटेंस हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब आप हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंग्लिश में बनाने के लिए रूल्स बताइए. शिवम क्या रूल्स है? सर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी. वर्ब प्लस आईएनजी. वर्ब प्लस आई. मनसा ओके है? यस सर. पक्का? शिवम ओके है? ये रूल ओके है? यस सर. मीन्स जब सेंटेंस होता है रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. ओके. इज एम आर एज पर नीड. इज लगेगा ये सिंगुलर है सब्जेक्ट. एम लगेगा यदि आई है सब्जेक्ट. आर लगेगा ये सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे दे, वी है, लाइक, टू, एनीबॉडी, लाइक दैट. ओके. यस सर. सो अब मुझे एक सेंटेंस बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी में. मनसा बताइए आप. वे खेल रहे हैं. इसी की इंग्लिश बताइए. क्या बनाएंगे आप? दे आर प्लेइंग. शिवम इसी तरह आप एक हिंदी का सेंटेंस बताइए. मंतसा स्कूल जा रही है. बताइए क्या इंग्लिश है हुई इसकी हिंदी की? मंतसा गोइंग टू स्कूल. क्या नियम है? मंतसा इज गोइंग टू स्कूल. गलती मत करिए शिवम. ओके. मार्क्स कटेंगे आपके. ओके. शिवम एक हिंदी का सेंटेंस बताइए. प्लूरल में बताइए जिसका सब्जेक्ट प्लूरल हो. मनसा आप बताइए. हम पढ़ रहे हैं. हम कैसा है? प्लूरल है. यस सर. हम पढ़ रहे हैं. क्या अंग्रेजी हुई प्रिंस? वी आर रीडिंग. वी आर रीडिंग. ओके. यस सर. क्लियर हो रहा है? शिवम आप कंफ्यूज हो जाते हैं. कंफ्यूज मत होइए. दिमाग लगाइए. ओके. अंडरस्टैंड? यस सर. बताइए एक सेंटेंस फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. कोई भी सेंटेंस बताइए. बोलिए. प्रिंस खा रहा है. यस बताइए क्या हुई इंग्लिश? प्रिंस इज ईटिंग. ईटिंग. इसी तरह एक प्लूरल सब्जेक्ट का बताइए. हम जा रहे हैं. क्या हुई इंग्लिश? वी आर गोइंग. गोइंग. गुड. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पूरा किया. यस Yes, सर. sir. अब इसी तरह से व्हेन लेट अस कम टू प्रेजेंट परफेक्ट. यस सर. प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हिंदी में किस तरह के होते हैं? मनसा बताइए. चुका है, चुके हैं, चुकी है. चुका है, चुकी है, चुके हैं. यस सर. ओके. जिसके सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं तो उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं. मनसा एक सेंटेंस बताइए सिंगुलर का.
शिवम खेल चुका है। शिवम आप बताइए एक सेंटेंस प्लूरल का। प्लूरल का सर, हम खा चुके हैं। हम खा चुके हैं। शिवम आप बताइए किसी कोई सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस बताइए कोई। हम खेल चुके हैं। वो तो उन्होंने बता दिया हम लगा के, इन्होंने बता दिया इस तरह से। आप कोई अलग से बताइए, सब डिफरेंट। वे खाना खा चुके हैं। वे खाना खा चुके हैं। वे खाना खा चुके हैं की अंग्रेजी क्या होगी मनसा? दे हैज, वे खाना खा चुके हैं। दे हैज ईटन फूड। दे प्लूरल है सिंगुलर है? दे हैव। कैसा है? दे प्लूरल है सिंगुलर? प्लूरल। प्लूरल के साथ हैज आएगा या हैव आएगा? हैव आएगा। तो क्या बना सेंटेंस? दे हैव ईटन फूड। गलत है या सही है? सर सही है, राइट। सर सही है। सही है। राम जा चुका है, क्या हुई इंग्लिश? राम जा चुका है। राम हैज गॉन। राम हैज गॉन। आदिल स्कूल पहुंच चुका है, क्या हुई अंग्रेजी? आदिल हैज रीचेड स्कूल। आदिल हैज रीचड स्कूल। रीच का थर्ड पोजीशन लगेगा। रीचड। मैं बीच में हम लोग रूल्स नहीं बता पाए। Yes. रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड पोजीशन। वर्ब का थर्ड पोजीशन। ओके। यस सर। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पक्का? यस सर। क्लियर? यस सर। गुड, वेरी गुड। सो इसी तरह से हमें बिल्कुल परफेक्ट रहना है। ये देखिए डेली एक्सरसाइज होगी आपकी, ये फेसबुक पे जाएगा। ओके। ये किसके लिए बना रहे हैं? वो बच्चे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो इंग्लिश नहीं जानते, वो इससे इंग्लिश सीखेंगे। आप फ्लोरेंस ग्लोबल स्कूल में पढ़ते हैं और आपने इंग्लिश सीखा है। आप कौन सी क्लास, विच क्लास यू आर स्टडिंग? एक बोलेंगे ना, तमीज नहीं है ना। I read in 7th standard. यू आर इन 7th स्टैंडर्ड। Yes. ओके। सो 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये ग्रामर आना चाहिए। बहुत अच्छा। ओके। फ्लोरेंस ग्लोबल स्कूल कहाँ है? वेयर इज दिस स्कूल? खुशलिया। वेयर इज दिस कुशलिया? विच डिस्ट्रिक्ट? गाजीपुर। बोलिए, बोलते क्यों नहीं है? कुशलिया इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? गाजियाबाद। गाजियाबाद इज इन विच स्टेट? स्टेट कौन सा है? हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, महाराष्ट्र है, क्या है? यूपी। बोल क्यों नहीं रहे? रोटी नहीं खाते हैं? फ्लोरेंस ग्लोबल स्कूल कुशलिया, पोस्ट ऑफिस दासरा, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, यूपी स्टेट है। व्हाट इज पिन कोड ऑफ कुशलिया? 201015। 20100। ये याद रखिए। ओके। बीच बीच में जो बातें बताई जाती है पूरी लाइफ में काम आएंगी। नहीं सीखोगे गधे रहोगे। अंडरस्टैंड? सीखना चाहते हो सीख लीजिए। आपके स्कूल का नाम क्या है? कॉपी को दिखाइए इधर कैमरा में, कॉपी के अच्छी तरह दिखाइए तमीज से। क्या नाम है स्कूल का? फ्लोरेंस ग्लोबल स्कूल। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मंतशा। योर नेम? माय नेम इज शिवम। योर नेम? माय नेम इज प्रिंस। प्रिंस। गुड। सो नाउ वी आर कमिंग टू फर्दर स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन। व्हाट इज दैट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो चौथा पार्ट है प्रेजेंट का, उसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? समय के साथ से रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे प्लस टाइम। प्लस टाइम। वह जा चुका होगा, 3 दिन से खाना खा रहा है। यस। वह 4 दिन से सो रहा है। वह सोमवार से जाग रहा है। मनसा 3 दिन से स्कूल नहीं जा रही है। ओके, निगेटिव है लेकिन कैसा है? सेम है। सो अगेन आई से व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस? दिस इज चुका है, चुकी है, चुके हैं प्लस टाइम with the support of has the since or for. Since is used when time is very definite. When time is not definite we are using for. Okay. So आप बताइए टेंस बताइए कुछ हिंदी के, बताइए एक सेंटेंस हिंदी का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिंदी का टेंस बताइए।
हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। आप बताइए मिस्टर शिवम। रियान सुबह से भाग रहा है। सुबह से भाग रहा है। आप बताइए। हम 3 दिन से खाना खा रहे हैं। आपने फॉर बता दिया, आपने सिंस बता दिया, आपने फॉर बता दिया, राइट? समझ में आ रहा? यस सर। एनी डाउट? नो सर। व्हाट आर द रूल्स टू मेक दिस सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस ओब्लिंग फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज और हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। टेल मी व्हाट इज रूल? सर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या सिंस ऑब्लिंग फॉर प्लस टाइम। हाँ, क्या है रूल्स बताइए एक बार। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस टाइम। फॉर या सिंस लगा के। Yes, sir. मनसा बताइए पूरा क्लियर करके एक बार फिर बताइए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस ओब्लिंग फॉर प्लस टाइम। टाइम, गुड। सो दिस इज द रूल। अब आप हमें हिंदी का एक सेंटेंस बताइए। वे 2 दिन से खाना खा रहे हैं। शिवम इसकी इंग्लिश बताइए। वे की इंग्लिश क्या है? दे। 2 दिन से खाना खा रहे हैं, अंग्रेजी बताइए। सर दे हैव 2 दिन से खाना खा रहे हैं। दे हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days। गुड। दे हैव बीन ईटिंग फॉर 2 days। आपने फूड को ईटिंग में ही लगा दिया, कोई बात नहीं। दे हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days। क्लियर? यस सर। एक और बताइए हिंदी का सेंटेंस। हाँ यस, शिवम बताइए। हम सुबह से पढ़ रहे हैं। गुड। आप इसकी इंग्लिश बताइए। हम सुबह से पढ़ रहे हैं। प्रिंस बताइए क्या हुई अंग्रेजी? वी हैव बीन रीडिंग फॉर मॉर्निंग। मनसा बताइए क्या हुई इंग्लिश? हम इंग्लिश बताइए। उन्होंने क्या बोला था सर? हाँ, हम सुबह से पढ़ रहे हैं। हम सुबह से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस आएगा या फॉर आएगा? सिंस। तो आप में क्यों नहीं तमीज आ रही है? क्या कारण है? हैज या हैव को के टाइम देखना बेटा कितना हो गया? 2 मिनट और लगाऊंगा, ठीक है? क्लियर? यस सर। एक सेंटेंस और बताइए जल्दी, टाइम पूरा हो रहा है। वे 2 दिन से टीवी देख रहे हैं। 2 दिन से टीवी देख रहे हैं? वे की जगह राम एंड श्याम कर दीजिए। राम एंड श्याम हैव बीन वाचिंग टीवी फॉर 2 days। 2 days। क्लियर? यस सर। सीता 3 दिन से रो रही है। सीता हैज बीन क्राइंग फॉर 3 days। प्रिंस 3 दिन से सोच रहा है। प्रिंस हैज बीन थिंकिंग फॉर 3 days। Right? Yes, sir. So this way we have completed one branch of tense making, that is present tense. There are 4 parts: present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous, जिसमें हमने पहचान सीखी। उसके अलावा रूल्स देखे कैसे इंग्लिश का टेंस बनाया जाएगा, उसके अलावा बनाया। कुछ कंफ्यूजन है उनको आप दूर करिए, और मैं सभी चाहता हूं हमारे बच्चे बहुत अच्छे होके रहें। राइट? ठीक है? Yes, sir. और इसके साथ क्या होगा कि हम एक बहुत अच्छा अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएंगे। राइट? Yes, sir. प्लेटफॉर्म क्रिएट जब हो जाएगा तो ये सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। राइट? ओके? एंड विद दिस थिंग वी विल क्लोज दिस सेशन and we shall go to another part. So today we have completed present tense, right? Yes. Okay? Yes, so sir. nice, very nice. And let us see this video on YouTube channel of Global College of Law, and which we should subscribe and also see what type we have done. Yes. I'm sure everybody will enjoy and everybody will learn how to make tense. Okay? So Mansa, Shivam and Prince, you need further more confidence.
Mansa confidence is 80%, Shivam confidence is 50%, and Prince confidence is also 50%. So 50% confidence will not work. This must be minimum 75%. If we don't have confidence, there is no meaning of reading. And there is no meaning of reading minimum in Florence Global School. Florence Global School wants that their students should be well in order. Confidence level must be high. Energy level must be high. Body energy level if it is high, you will be successful in your life. Okay? Yes, so आज इनको रिपीट कर लीजिए, हो सकता है कल हम इसे दूसरी बार करेंगे. So thank you very much. Nice.